ہمارے ساتھ موجود ہماری بہت ہی پیاری منزہ عارف. السلام علیکم جی. شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر ندا نجمی جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر او بی اینڈ گائنوکالوجی ڈپارٹمنٹ آغا خان یونیورسٹی میں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر شبانہ مفتی جو کہ جناب ہیں BHRTI یعنی کہ بایو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپسٹ, پاکستان کی پائنیئر ہے اس میں. السلام علیکم جی. میں آپ کو شو میں خوش آمدید کہنا چاہوں گی. اور سب سے پہلے تو میں آپ تینوں خواتین سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہمیں آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ مینوپاز کیا ہے. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اٹس لولی ٹو بی ہیئر. مینوپاز دیکھیں, خاتون جو ہوتی ہے نا وہ ایک ریزرو آف ایگز کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. جب وہ پیدا ہوتی ہے تو اس کی ٹائم پہ ایٹ دا ٹائم آف برتھ شی ہیز, اچھا مجھے بتا دیجیے گا جب میں بہت مشکل بولوں, تو ان کا ایک ایگ کا ریزرو ہوتا ہے جو کہ فالکلز وغیرہ سارے 2 ملین 3 ملین تک ہوتے ہیں. جیسے جیسے اس کی ایج بڑھتی ہے وہ ایگ کا ریزرو کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ آدمیوں کی طرح نہیں ہے کہ ایوری منتھ اس کا سپرم جو ہے بنتا جائے. وہ ایک اس کی ایگ کی کوالٹی کوانٹٹی ایج کے ساتھ کم ہوتی ہے. 30s میں جا کے بہت کم ہو جاتی ہے اور 40s میں تو بالکل 10,000 تک رہ جاتی ہے. اور جب یہ ایگز بالکل ختم ہونے والے ہو جاتے ہیں, 50 سال کے آس پاس ایوریج ایج ہے, جب ماہواری پورے سال کے لیے ختم ہو جاتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں یہ بندش ہو گئی, اب آفیشلی وہ مینوپازل ہو گئی, کیونکہ اب اس کے پاس ایگز نہیں ہیں, فالیکلز نہیں ہیں. اب وہ 2 کام کر رہے تھے, آپ کو فرٹیلیٹی دے رہے تھے, بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت دے رہے تھے, اس کے ساتھ وہ ہارمونز پیدا کر رہے تھے. ویری ویری امپورٹنٹ ہارمونز. آپ نے ایسٹروجن کا نام لیا, ایک ٹائپ آف ایسٹروجن ہوتا ہے ایسٹراڈائول, 17 بیٹا ایسٹراڈائول جو جوانی کا ہارمون ہے, جو وائٹلٹی کا ہارمون ہے. اس کے ساتھ ٹیسٹوسٹیرون, اس کے ساتھ پروجسٹرون, اس کے ساتھ DHEA جو آپ کا ایڈرینل گلینڈ پیدا کر رہا ہوتا ہے. یہ سارے ہارمونز بہت امپورٹنٹ ہے خاتون کی ہیلتھ کے لیے. اب جب بچہ بھی نہیں پیدا کر سکتی وہ تو ٹھیک ہے کہ آپ کی فرٹیلیٹی فیز پورا ہو گیا, لیکن اب اگر آپ کے ہارمونز جو آپ کو پروٹیکٹ کر رہے تھے فرام ہیڈ ٹو ٹو, آپ کے جسم کے اندر اس کے ریسیپٹرز تھے, آپ کے ہارٹ کو بچا رہے تھے, آپ کے برین کو بچا رہے تھے, آپ کی ہڈیوں کو بچا رہے تھے, جوڑوں کو بچا رہے تھے, اسکن کو, ہیئر کو, نیلز کو, سیف گارڈ بنے بیٹھے ہوئے تو وہ ساری پروٹیکشن ختم ہو گئی. تو آپ کو سمٹمز بھی آئیں گے ارلی 40s میں, جسے ہم پیری مینوپاز کہتے ہیں, جب آپ کی ماہواری اوپر نیچے ہوتی ہے فلکچویٹ. اور جب آپ کے ہارمونز ختم ہو گئے تو لانگ ٹرم میں آپ کے ساری ڈیزیزز آ جائیں گی بیکاز آف انفلیمیشن اینڈ ڈیفیشنسی آف دس ہارمون. تو یہی مینوپاز ہے جو کہ سٹارٹ ہوا 40s میں پروسیس, اور اس کو بھگتنا پڑے گا ہمیں ڈیزیزز کی صورت میں, بڑھاپے کی ایجنگ کی صورت میں, کب 60s میں. او مائی گاڈ, یہ تو ڈاکٹر نجمی بڑی ایسا لگتا ہے بڑی خوفناک سی بات ہے. جتنے سننے میں جتنی خوفناک لگ رہی ہے, کیا جو خواتین گزارتی ہیں وہ واقعی اتنی خوفناک ہوتی ہے؟ دیکھیں اتنی خوفناک ہو سکتی ہے اگر ہم پہلے سے انویسٹمنٹ نہ کریں اس کے اندر. لائک یو سیڈ انیشلی کہ یہ لیٹ 30s سے اسٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے, اور لیٹ 30s میں آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں یور آن ٹاپ آف دا ورلڈ, تو آپ سوچتے بھی نہیں ہیں ان چیزوں کے بارے میں. بٹ ایکچولی اگر آپ انویسٹمنٹ لیٹ 30s ارلی 40s سے شروع کریں, then your 50s and 60s can actually be prime of your life. اچھا یہ بتا دیں انویسٹمنٹ میں کون سی خواتین کہیں گی وہ یہ کہیں کمیٹیوں کی بات تو نہیں کری کہ انویسٹمنٹ کریں, ہم کمیٹیاں ڈالنا شروع کر دیں. انویسٹمنٹ آف ہیلتھ, ہاں اپنے اوپر انویسٹ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے, میں خواتین کو کہتی ہوں. تو آپ کھا کیا رہے ہیں, ہارمونز کی بات کی, بالکل ہارمونز ہمارے باڈی کا ایک بہت مینڈیٹری جز ہیں, لیکن اس کے علاوہ آپ کر کیا رہے ہیں, آپ کا لائف سٹائل کیا ہے, واٹ آر یو ایٹنگ, رائٹ. آپ ایکسرسائز کتنی کر رہے ہیں. 30s میں تو آپ اپنے کاموں میں ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں نا, یا بہت اچھے ہوتے ہیں اورینٹیڈ ٹو یور ہیلتھ, یا بالکل نہیں ہوتے ہیں کہ بعد میں دیکھیں گے. سو اگر آپ اس وقت سے اپنا انویسٹمنٹ شروع کریں ان یور ہیلتھ, then your 50s and 60s is the prime of your life. So menopause بہت اچھا ہو سکتا ہے اگر ہم پہلے سے انویسٹمنٹ رکھیں اس کے اندر. اور یہ جو ارلی مینوپاز سے میں نے تو اب شکر ہے کہ یہ میڈیا کی وجہ سے, سوشل میڈیا کے پلس پوائنٹس بھی ہیں, اور خود ہمیں پڑھنے کا شوق بھی ہے, ریسرچ کا شوق بھی ہے, ورنہ پہلے مینوپاز کو ڈسکس بھی نہیں کیا جاتا تھا. اور کبھی کہتے تھے نا کسی کو کوئی مینوپاز سے گزرا تو کہتے ہیں مینوپاز سے گزرے نا, مجھے مینوپاز سے. اچھا یہ ٹیبوڈ ایک ٹاپک تھا نا ایک زمانے میں. میں تو اس پوائنٹ سے یہ کہوں گی کہ آج کل جو ینگسٹرز میں جو 2 ٹرینڈز ہیں, ایک تو ٹریش اور بالکل جنک فوڈ کھانے کا, یہ آئی تھنک اٹس اے ویری امپورٹنٹ پروگرام. جتنی ینگ لڑکیاں بچیاں دیکھ رہی ہیں, فار گاڈ سیک آج سے اپنی ڈائٹ, اپنا کھانا پینا درست کریں. بیکاز ایک بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ میری آنکھوں سے بھی گزری, انہوں نے کہا جو آپ اپنے ساتھ 20s میں کر رہے ہیں اس کا رزلٹ آپ کو ملے گا 50s اینڈ آنورڈز, آپ کو یہی ریٹرن ملے گا. سو جتنا, جیسے آپ نے کہا کہ جتنا آپ انویسٹ کریں اپنے اوپر, اسی کا آپ کو رزلٹ ملے گا.
तो मैं सोचूं अभी हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत बेहतर खालिस खुराकें और बड़ी अच्छी चीज़ें थी, हम उनसे 1 डिग्री नीचे थे और हमें डांटें पड़ती थी, ये तुम लोग ये दूध नहीं पीते, फला नहीं खाते, बटर ये वो, जो कि हमें ज़बरदस्ती मुझे अपनी डाइट में ऐड करनी। तो और आगे जब मैं जनरेशन देख रही हूँ तो ये तो बिल्कुल ही कोक पी रहे हैं और फिजी ड्रिंक्स एंड ऑल, ये आगे जाके क्या करेंगे मुझे समझ में नहीं आता। एक ये चीज़, और दूसरा वो जो यंग कपल्स जो बस आजकल देखिए जनरल ट्रेंड बन गया है, बेबी जल्दी नहीं पैदा करने, हमने अभी अपना टाइम एंजॉय करना है, उनको नहीं पता, दे आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, और फिर एक टाइम आएगा जब आप तड़प रहे होंगे कि अब बेबी हो, और फिर अल्लाह की तरफ से वो डिले आते हैं और बड़े मसाइल पैदा होते हैं डिलीवरीज में भी, बेबीज, मतलब एक एनर्जी चाहिए। वो तो बात की बात है कि उनको रेज करने के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। तो ये 2 अलार्मिंग पॉइंट्स तो मुझे बहुत हिट करते हैं कि पता नहीं इस जनरेशन का आगे क्या हो। सही। अच्छा, वैसे जो आपने बात की, मैं इस बात को यहाँ से आगे बढ़ाऊंगी भी कि मुझे वाकई बताइएगा, मैं चाहूँगी कि बड़े ऐसे ढगच पे अल्फाज में बात भी हो जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें पता है हमारे घर के अपने मर्द भी देख रहे होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जब ख़वातीन लेती हैं या फिर इंजेक्शन लगवाती हैं, जैसे उन्होंने बात की और ये बात बिल्कुल सही करी है कि लोग चाहते हैं, और हम उनके डिसीजन की भी रिस्पेक्ट करते हैं कि वो कहते हैं जी हमें 3-4 साल तक बच्चे नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए औरत जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती है, वो इंजेक्शंस लगवाती है, मर्द नहीं होता, और उसकी वजह से एक तो उस बेचारी की बॉडी फूल भी जाती है, और फिर होता है कि जब वो कंसीव करना चाह रहे होते हैं तब वो कंसीव नहीं कर पा रहे। क्यों? देखिए, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, अगेन वी हैव टू गो टू द बेसिक साइंस। वो जो एस्ट्रोजन होते हैं वो सिंथेटिक एस्ट्रोजन होते हैं, उसके अंदर एथेनल, एस्ट्राडायोल, लेवोनॉर्जेस्ट्रल, मिलियंस, आई कैन से द नेम्स, वो सारे सिंथेटिक हार्मोन्स हैं। उसने जहाँ पे जाके काम करना होता है वो आपकी छाती के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर एक ताला है, उसके ऊपर हार्मोन चाबी है। तो हर हार्मोन हर जगह पे काम नहीं करता। हमें साइंस समझनी होगी कि आपके जिस्म के अंदर अल्फा रिसेप्टर्स, बीटा रिसेप्टर्स, जीपर्स, मेम्ब्रेन, अब बहुत साइंस हो जाएगी। तो आपने जो खास हार्मोन, सिंथेटिक हार्मोन आपने पिल्स की सूरत में दिया, वो जाके छाती के रिसेप्टर्स पे काम करेगा। तो इसका मतलब है बाहर से जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन है वो ज्यादा हो गया, छाती का कैंसर ज्यादा हो सकता है, लिवर में मेटाबलाइज होगा, एब्सोल्युटली लिवर में मेटाबलाइज होगा, तो आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स और रिटेंशन जो होता है ना, कैसे कहूँ मैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स का टाइम ज्यादा करेगा, आपके क्लॉट्स बन सकते हैं, खून जम सकता है। तो इसकी वजह से जो सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं, हम खवातीन को कहते हैं कि अगर ब्रेस्ट हिस्ट्री है, सिंथेटिक की बात हो रही है, नॉट नेचुरल बायोइडेंटिकल, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, वो आपका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हाई कर सकता है, क्लॉट्स कर सकता है, आपका मेटाबॉलिज्म चेंज कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सिंथेटिक हार्मोन्स इज रिस्की। इसकी वजह से आप चाहे मतलब उसको ज्यादा लंबे टाइम के लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मैं एक बार हम जब ब्रेस्ट कैंसर पे हमने शो किया था तो उसमें भी था कि एक रीजन ये भी है कि यहाँ पे खवातीन जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इस्तेमाल करती हैं, डॉक्टर साहब इसका मतलब है कि ये तो सेफ नहीं है, और क्या मुस्तकिल आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आपको लेनी चाहिए? क्या हो सकता है? डॉक्टर साहब ने जैसे बात की कि आप बैकग्राउंड हिस्ट्री के साथ लेके चलते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर चीज़ तो ओवर द काउंटर वैसे भी मिल जाती है। बिल्कुल। सो मेनी अ टाइम्स आपने डॉक्टर से डिस्कस नहीं किया हुआ है, फ्रेंड से पूछा और स्टार्ट कर दिया, एंड देन यूर सेल्फ एडमिनिस्टर कर रहे हैं, एंड आपके बैकग्राउंड रिस्क फैक्टर असेस ही नहीं हुआ हुआ है। सो अगर वो नहीं हुआ है देन यस आपका इंक्रीज रिस्क हो गया, ब्रेस्ट कैंसर का भी हो गया, दूसरे प्रॉब्लम्स का भी हो गया, बीटी और चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ, प्रॉपर डिस्कशन के साथ करते हैं, then yes within the safe limit you can use it safely up to a certain period of time। और जैसे हमारे कोलीग ने बताया कि आप 40 साल तक अगर वेट करेंगे प्रेगनेंसी का, then naturally you are aging। तो अच्छा, लेकिन बाहर ये तो हमारे पाकिस्तान में बात की जाती है, अगर आप बाहर ये बात करें तो लोग कहते हैं नहीं जी हमने तो कंसीव ही 40 साल के बाद किया है और 40 साल के बाद ही बच्चे हो सकते हैं, तो ये क्या ये सही है? देखिए, औरत बायोलॉजिकल क्लॉक पे है। बायोलॉजिकल क्लॉक का ये मतलब नहीं है कि आपके जो है 35 साल के बाद जो है बिल्कुल बच्चा नहीं पैदा हो सकता। आप ये देखें, जिस तरह डॉक्टर साहब भी बता रही थी कि
टीन एज प्रेगनेंसी अगर बहुत जल्दी कर ली जाए वो भी तो खतरा है। हालांकि प्यूबर्टी तो आपकी 15, 14, आजकल तो 12 साल में, 10 साल में हो रही है जब माहवारी शुरू हो जाती है। टाइम उसका बदल गया है, लेट बता रही है बच्चों को 9-9 साल में प्यूबर्टी। जी जी, आपके जो एस्ट्रोजन है, जिस तरह वो इन्वेस्टमेंट कह रही थी, एस्ट्रोजन आपकी फूड में भी है, प्रोसेस फूड में भी है, हर चीज़ में है। बट गोइंग बैक टू द सब्जेक्ट, आपका अगर 19 साल से पहले प्रेगनेंसी होती है तो हम उसे कहते हैं टीन एज प्रेगनेंसी, जो ऑटोमेटिकली बाहर के कंट्री में और मेरे ख्याल यहाँ पे भी आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी को लेबल कर दिया जाता है कि अब ये खतरे वाली प्रेगनेंसी है। इसी तरह जब आपकी 35 साल के बाद होती है तो हम उसे कहते हैं एडवांस मैटरनल एज, यानी कि औरत, सुनने में बुरा लगता है कि अब औरत जो उसकी एडवांस एज हो गई है, तो कि बूढ़ी हो रही हूँ मैं, तो मैं अक्सर अपनी खवातीन को कहती हूँ व्हेन आई डिलीवर देयर बेबीज, AMA इसको कहते हैं, एडवांस मैटरनल एज, डरो मत, तुम ठीक रहोगी। द ओनली थिंग इज कि एजुकेशन हमें देनी पड़ती है, उनको अवेयरनेस देनी पड़ती है कि क्या क्या चीज़ें होंगी अगर आप हमल ठहरेगा नहीं, मिस कैरेज हो सकता है, डाउन सिंड्रोम हो सकता है, बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं होगी, 40s में भी होती है जो लोग वेट करते हैं, 45 में भी हो सकती है। बट द जो खतरा है बीमारियों का बढ़ जाएगा जो प्रेगनेंसी के साथ आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और प्रेगनेंसी होने का चांस, अगर ग्राफ देखें, आपने ग्राफ में रहना होता है, एक्सट्रीम नहीं देखना होता कि चीदा चीदा। अब अगर कोई 60 साल में बच्चा पैदा कर देता है तो पार्ट ऑफ न्यूज हो जाता है ना, दे बिकम पार्ट ऑफ भाई। अभी आप देखें ना, वो इंडिया के जो सिंगर हैं सिद्धू मूसवाला, ही वॉज मर्डर्ड, और उसके बाद क्योंकि वो अपने माँ बाप की इकलौती वाहिद औलाद थे, तो उसके बाद उनके माँ बाप भी एक प्रोसेस के थ्रू गुजरे, और उनकी अम्मा की अच्छी खासी उम्र थी, वो होंगी मिड 50s में, और मिड 50 से ज़्यादा, That's why she's a part of news. जी एग्जैक्टली। और उसके बाद उन्होंने कंसीव किया और उनका बेबी बहुत हेल्दी हुआ। अच्छा, हम आपने देखा होगा पहले कि मनसर जी, माएँ कुछ अपने फैमिली लोग बताते हैं, बड़ी हंसी भी आती है, फिर हम कहते हैं कि भाई ये लोग खवातीन कितनी फर्टाइल थी उस टाइम पे कि जी बेटी के यहाँ भी और अम्मा के यहाँ भी एक साथ ही बच्चों की विलादत हो रही होती है। अक्सर मैं लोगों से पूछती थी तो लोग बताते थे मेरी खाला जो है ना वो और मेरे अम्मी जो कुछ ऐसा बताते थे कि समथिंग एज, अम्मी ने भी एक टाइम में बच्चा पैदा किया, फिर आगे बेटी ने भी एक टाइम में बच्चा पैदा किया। कहती है ये कैसे हो गया कि मेरे मामू मुझसे 3 दिन छोटे हैं, हाउ कैन यू से दैट? ये हमारे, बल्कि मेरी अम्मी से भी पिछली वाली जनरेशन में तब हम ये सुनते थे कि दोनों के यहाँ माँ के घर भी बेबी हो रहा है और बेटी के। बट एक ग्रेजुअली जैसे जैसे हमारा जो क्वालिटी ऑफ फूड और जो हमारे खाने पीने की चीज़ें, खाद वाली सब्जियां और क्रॉप्स हम तक पहुंच रही हैं, जैसे जैसे उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू नीचे जा रहा है, वैसे वैसे हमारा प्रॉब्ली क्वालिटी ऑफ लाइफ और वो सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं। तो मुझे तो बड़ा खौफ आता है भाई, जो बच्चे आजकल वैसे ही रबिश खा रहे हैं। जिस तरह प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर आपने बात की थी ना कि आजकल मेनोपॉज की एज कम होगी, जी जी, पहले उसका इंसिडेंस 1% था, अब पूरी दुनिया में 3% हो गया। और अब जो मैं पेशेंट्स देख रही हूँ उसमें, यू बिलीव इट और नॉट, हर 5 पेशेंट में से मेरे पास तो कोई एक पेशेंट आ रहा है कि भाई हमारा 30 साल की लड़की है, उसका मेनोपॉज हो गया, ओवरीज ने काम करना बंद कर दिया, और फिर अभी उनकी शादी भी नहीं हुई। फिर वो आके पूछेंगी कि अच्छा, मैंने 3 पेशेंट अभी पिछले 5 दिन में देखे, जो कि एक 33 साल की थी, एक 36 साल की। 36 साल वाज लकी कि उसके 4 बच्चे थे बिकॉज शी गॉट मैरिड अर्ली। लेकिन जो मेरे ख्याल 32 साल वाली थी उसकी भी शादी होने वाली थी, और वो पूछ रही थी कि अब अगर बच्चे नहीं होंगे और चांसेस इतने कम हैं तो क्या मैंने अपने इन लॉज को बताना है, क्या मैंने अपने हस्बैंड को बताना है? मैंने कहा ये तो मोरल कंपस की बात है, अखलाकियात की बात। लेकिन मुझे ये बताएं, अब देखिए, अब वो जो लड़की ये बात करी, मुझे इसको बताना है, ये तो मोरल कंपस की बात है, उसको बताना है, बट मुझे बताएं ये उसके लिए, औरत के ये कितना मुश्किल है कि वो जो बंदी की, ऑफ कोर्स की शादी नहीं हुई, उसको और कि वो बंदी जिसकी भी शादी भी नहीं हुई और पता चल रहा है कि नहीं जी वो इस लेवल को वो हिट कर गई है। तो मैं चाहूँगी ज़रा नफ्सियाती पहलू के वाले से बात भी करेंगे कि अगर हमें साइकोलॉजिस्ट ज्वाइन करेंगी। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। प्री मेनोपॉजल जो है, जो एक स्टेज है, हमें पता नहीं, हम उसको हिट करके हमें पता होना चाहिए कि भाई क्योंकि आफ्टर 30 ये आपको हिट कर रहा है, तो क्या क्या इसके सिम्टम्स, इस पर बात करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं में जाइएगा। Welcome back after the break.